Good morning everyone. I am Anjali Singh, Assistant Professor of Pharmacology from the Department of Pharmacy, RKGIT Ghaziabad. In this lecture series, we are going to discuss about the general anesthetic agents or the general anesthetic drugs, local anesthetic drugs, which is a part of Pharmacology First BP 404 T, unit number 3. So let's start the lecture. So what is local anesthetic drugs or what are the effects of local anesthetic drugs? So basically local anesthetic drugs are drugs which upon topical application or local injection cause reversible loss of sensation or perception, especially of pain in a restricted area of the body. So as you can see in this definition, we have used a drug local, means the effect, and anesthetics means the anesthetic effect of these drugs are localized in a particular area. ये जो drugs हैं ये अपना जो effect है उसे केवल एक particular area में show कर सकती हैं without causing loss of consciousness, यानी कि ये consciousness को loss नहीं करती हैं. इनका जो effect होता है वो reversible होता है, यानी कि कुछ टाइम के लिए पेन रिलीफ प्रोवाइड करती हैं, या जो भी इनका इफेक्ट है वो कुछ टाइम इंटरवल के लिए होता है, एंड आफ्टर दैट वो जो इनका इफेक्ट है वो रिमूव हो जाता है. ठीक है, बट द इफेक्ट इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ द बॉडी, यानी कि जहाँ पे आपने इसको टॉपिकली अप्लाई किया हुआ है उस पर्टिकुलर एरिया में या जहाँ पे आपने इसको इंजेक्ट किया है, इनका जो एनेस्थेटिक इफेक्ट है वो उसी पर्टिकुलर एरिया में आपको विजिबल होगा. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द जनरल एनेस्थेटिक एंड द लोकल एनेस्थेटिक. सो एज यू कैन सी द फर्स्ट डिफरेंस इज ऑन साइट ऑफ एक्शन, कि आपकी जो जनरल और लोकल एनेस्थेटिक्स होती है इनके साइट ऑफ एक्शंस क्या क्या होते हैं. सो द जनरल एनेस्थेटिक विल एक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सो बेसिकली ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती हैं और एक जनरलाइज्ड इफेक्ट प्रोवाइड करती हैं. Local anesthetic will act on the peripheral nerves, means these drugs will act on the periphery, means आपके particular किसी body के localized area में ही अपना effect show करेंगे. Next, area of the body involved, the effect of the general anesthetic is on whole body, ये आपकी पूरी body पे ही अपना anesthetic effect show करेंगे. As compared to local anesthetic will show it effect in a restricted area, ये एक restricted area में ही अपना effect show करेंगे. Next is the consciousness. So when we are using the general anesthetic, consciousness is lost, consciousness आपकी lost हो जाएगी, but in whenever we are using local anesthetic, consciousness is unaltered, यानी कि जो आपकी consciousness होती है वो loss नहीं होती है, उस पर कोई भी effect नहीं होता है. Next is care of the vital functions. So whenever we using a general anesthetic, so it is very essential to care the vital functions, यानी कि आपका breathing, आपका blood pressure, ये सारी चीज़ें हमें properly regularly monitor करनी पड़ती है during with the treatment of general anesthetic, जब हम general anesthetic use कर रहे हैं. But whenever we using the local anesthetic, usually it is not needed, क्योंकि आप एक particular area में अपनी drug को apply करके उस restricted area में उसका effect check करते हैं, तो यहाँ पे आपके जो vital functions होते हैं उनकी monitoring जो होती है वो required नहीं होती है. Okay, next is फिजियोलॉजिकल इफेक्ट. इसका जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होता है वो हाई होता है, और लोकल एनेस्थेटिक बिकॉज एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में अपना इफेक्ट शो कर रही है तो इसका जो इफेक्ट होता है वो लो होता है. नेक्स्ट इज अ पुअर हेल्थ पेशेंट. If a person is suffering from any kind of disease, so the use of general anesthetic is risky. उसमें आपको general anesthetic का आप use करो because these drugs will show a generalized effect, यानी कि ये आपकी पूरी body पे एक anesthetic effect show करेंगी, तो इनका use करना उस condition में risky होता है. But we can easily use the local anesthetic for this category or for this criteria. Now use is non-cooperative patients. अगर आप general anesthetic को किसी non-cooperative patient पे use करते हैं तो आप पॉसिबल है ये यूज़ करना, बिकॉज ये कॉन्शियसनेस को लॉस कर देता है कुछ टाइम के लिए, तो अगर आपका पेशेंट कोऑपरेटिव नहीं है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं. बट इफ़ द पेशेंट इज़ नॉन कोऑपरेटिव तो आप लोकल एनेस्थेटिक यूज़ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये कॉन्शियसनेस को लॉस नहीं करता है हमारे पेशेंट की. नेक्स्ट है मेजर सर्जरी. अगर हमें कोई मेजर सर्जरी परफॉर्म करनी है, सो व्हेनेवर यू आर परफॉर्मिंग अ मेजर सर्जरी वी हैव टू यूज़ द जनरल एनेस्थेटिक. जनरल एनेस्थेटिक हम यूज़ करेंगे मेजर सर्जरी को परफॉर्म करने के लिए, एंड we cannot use local anesthetic to perform any kind of major surgery. But if we are giving if you are performing a minor surgery, जब आप कोई बहुत छोटी मोटी सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं, so we can prefer the local anesthetic. So these are the basic differences between the general anesthetic and local anesthetic from the site of action to the effect of the drug. The effect of the general anesthetic is generalized, आपकी पूरी बॉडी पे, होल बॉडी पे अपना इफेक्ट शो करेगा. The site of action is central nervous system. It is very essential to monitor the vital function, and the use of general anesthetic in a patient is risky. Okay,
if the patient is non cooperative, we can easily use general anesthetic on the patient. Okay, if we are performing a major surgery, हमारी प्रेफरेंस होगी कि हम किसी भी मेजर सर्जरी को परफॉर्म करने के लिए जनरल एनेस्थेटिक को यूज़ करेंगे, एंड इफ़ वी आर परफॉर्मिंग अ माइनर सर्जरी, उस केस में हम लोकल एनेस्थेटिक को यूज़ करेंगे. Now the classification of this drug. So the local anesthetics are classified into two categories. The first category is of injectable anesthetic, and in second category we have the surface anesthetic. So in injectable category we have three subcategory. First category of low potency short durations drug, यानी कि ये जो drug है इनका T half जो होगा वो बहुत कम होगा. Okay. In second category we have the intermediate potency and duration, यानी कि इनका जो T half है वो इस कैटेगरी से थोड़ा ज़्यादा होगा, ये हमारी बॉडी में कुछ ज़्यादा टाइम के लिए रहेंगी. इन थर्ड कैटेगरी वी हैव द हाई पोटेंसी लॉन्ग ड्यूरेशन ड्रग, यानी इन ड्रग्स का जो आपका टी हाफ है वो काफ़ी ज़्यादा होगा. ये ड्रग्स हमारी बॉडी में काफ़ी देर के लिए रहेंगी, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो काफ़ी देर के लिए होगा. ओके, सो इन फर्स्ट कैटेगरी वी हैव द ड्रग procaine and chlorprocaine. In second category we have the lidocaine. In third category we have tetracaine and so on. So as you can see there is a suffix caine. So basically ये जनरल एनेस्थेटिक के लिए यूज़ होने वाला सफिक्स है. जहाँ पे भी आपको केन सफिक्स मिलेगा दैट मीन्स कि वहाँ पे आपको जनरल एनेस्थेटिक के बारे में डिस्कस करना है. इन सेकेंड कैटेगरी वी हैव द सरफेस एनेस्थेटिक्स, दैट मीन्स दीज ड्रग्स विल अप्लाई ऑन अ पर्टिकुलर surface and will show its effect on this particular restricted area. So in surface anesthetics we have two subcategories. In first categories we have the soluble general local anesthetic. In second category we have the insoluble local anesthetic. So these are the soluble anesthetic, for example cocaine, lidocaine, tetracaine and venoxinate. In second category we have the insoluble local anesthetics, for example benzocaine and so on. So these are the two major categories of the local anesthetic. In first category we have learned about the injectable anesthetics. In second category we have the surface anesthetics. Now what is the mechanism of action of the local anesthetic? जो local anesthetic है वो हमारी बॉडी में कैसे एक्ट करते हैं? So the local anesthetic block nerve conduction by decreasing the entry of the sodium ions during upstroke of action potential. As the concentration of local anesthetic is increased, the rate of rise of action potential and the maximum depolarization will decrease, causing slowing of the conduction. So finally local depolarization fails to reach the threshold potential and conduction block ensure. Okay, so as you can see in this graph, यहाँ पे हमने ग्राफ बनाया है टाइम और मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बीच में एक हमने ग्राफ प्लॉट किया है. सो दिस A इज एन अनट्रीटेड फाइबर, ये हमारा एक अनट्रीटेड फाइबर है. सो बेसिकली जो हमने इससे पहले भी पढ़ा है कि जब हमें ब्रेन को पेरिफेरी के साथ में कम्युनिकेट करना होता है, कोऑर्डिनेट करना होता है, तो एक एक्शन पोटेंशियल का जनरेट होना बहुत ही मैंडेटरी होता है. बिकॉज पेरिफेरी से जो आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है वो नर्व इम्पल्स के फॉर्म में कहाँ जाता है, हमारे ब्रेन के पास सिग्नल लेके, और सेम इसी रूट से हमारा जो ब्रेन है वो हमारी पेरिफेरी के साथ में कोऑर्डिनेट करता है. सो टू जनरेट अ एक्शन पोटेंशियल वी रिक्वायर्ड मूवमेंट ऑफ सोडियम आयन and potassium ion. Okay, जब sodium ion, for example this is a cell in resting condition. So as we have earlier discussed that in resting condition the membrane potential is minus 70 millivolt. Whenever this cell get a stimulus, इस सेल को कहीं से कोई स्टिमुलस मिलता है तो क्या होता है, सोडियम आयन चैनल्स ओपन हो जाते हैं और सोडियम जो है वो सेल के अंदर एंटर करना स्टार्ट हो जाता है, जिससे जो हमारा ग्राफ है उसमें डीपोलराइजेशन शिफ्ट देखने को मिलता है. आफ्टर सम टाइम पोटेशियम आयन चैनल ओपन हो जाते हैं बिकॉज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन इज हाई इन इंट्रासेल्युलर फ्लूइड. सो जो पोटेशियम आयन है वो सेल्स के अंदर से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें एक दूसरी शिफ्ट मिलती है जिसको हम बोलते हैं रिपोलराइजेशन. एंड द सीक्वेंस ऑफ डीपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन इज नोन एज द एक्शन पोटेंशियल विच विल प्रोपोगेट बिटवीन द पेरिफेरी एंड द ब्रेन एंड ब्रेन टू पेरिफेरी. ओके, तो यानी अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो बॉडी पार्ट है वो हमारे ब्रेन से कनेक्टेड रहे, तो एक एक्शन पोटेंशियल का जनरेट होना, उसका एक इम्पल्स के फॉर्म में हमारे ब्रेन तक जाना और वापस आना हमारे लिए रिक्वायर्ड होता है.
So by giving these local anesthetic drugs, we can block this impulse conduction और we can block this movement of sodium ion. हम इस सोडियम आयन के मूवमेंट को ब्लॉक कर सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे फर्दर कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा. इसीलिए जब हम लोकल एनेस्थेटिक को किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जो भी सेंसेशंस होती हैं उनको हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा ये पर्टिकुलर बॉडी पार्ट जहाँ पे हमने लोकल एनेस्थेटिक ड्रग अप्लाई की है यहाँ पे कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, जिसकी वजह से ये हमारे ब्रेन के साथ में कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा. ओके, सो इन दिस ग्राफ दिस ब्लू लाइन, ये आपकी एक ऐसे मसल फाइबर की लाइन है, या सॉरी एक ऐसे फाइबर की लाइन है जहाँ पे हमारा दिस इज एन अनट्रीटेड फाइबर, ये एक अनट्रीटेड फाइबर है जिसमें कि हमने लोकल एनेस्थेटिक नहीं दिया है. सो इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपका नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल रहेगा -70 और -90, और इसके बाद जैसे ही आपके सोडियम आयन चैनल ओपन होंगे, सोडियम सेल के अंदर एंटर करना स्टार्ट करेगा और हमें एक डीपोलराइजेशन की शिफ्ट देखने को मिलेगी. आफ्टर दैट पोटेशियम आयन चैनल ओपन होते हैं और पोटेशियम सेल के अंदर से सेल के बाहर आना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमें एक रीपोलराइजेशन की शिफ्ट देखने को मिलती है. एंड सीक्वेंस ऑफ डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन इज नोन एज एक्शन पोटेंशियल. ये एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया जो कि नर्व फाइबर में आगे की तरफ प्रोपोगेट होकर आपके ब्रेन तक जाएगा और ब्रेन को बॉडी पार्ट के साथ कोऑर्डिनेट करवाएगा. ओके, नाउ इन ग्राफ बी, सी एंड डी यहाँ पे हमने लोकल एनेस्थेटिक अप्लाई किया है, तो यहाँ पे हमारा जो लोकल एनेस्थेटिक है उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना स्टार्ट हुआ है, यानी डीपोलराइजेशन की शिफ्ट हुई है, लेकिन रीपोलराइजेशन की शिफ्ट जो है वो प्रॉपर्ली कंप्लीट नहीं हो पाई है, यानी कि यहाँ पे आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा. इन द ग्राफ सी जब हम लोकल एनेस्थेटिक का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा बढ़ा देते हैं तो फिर आप यहाँ पे देखिए कि जो आपका ग्राफ है ये ऊपर की तरफ जाने के बजाय यहाँ पे बेंड होना स्टार्ट हो गया है, यानी कि जो सोडियम आयन का मूवमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, जिससे कि डीपोलराइजेशन की शिफ्ट यहाँ पे जनरेट नहीं हो रही है. इन लास्ट ग्राफ एज यू कैन सी इन ग्राफ ऑफ डी ड्रग डी फाइबर, इसमें हमने जो आपकी लोकल एनेस्थेटिक ड्रग है इसके कॉन्सेंट्रेशन को फर्दर और इंक्रीज कर दिया है. तो यहाँ पे इस कॉन्सेंट्रेशन के इंक्रीज होने की वजह से आप देखोगे कि जो आपका ग्राफ है वो नीचे ही जा रहा है, यानी कि ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक भी नहीं पहुंच रहा है. थ्रेशोल्ड पोटेंशियल का मतलब यहाँ पे -60 मिलीवोल्ट है. थ्रेशोल्ड पोटेंशियल मीन्स द मिनिमम पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल, कि आपको एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए एक मिनिमम पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल. सो बेसिकली जनरल एनेस्थेटिक विल ब्लॉक द सोडियम आयन चैनल and inhibit the generation of action potential, or we can say the communication between the periphery and the brain. So the local anesthetic interact with the receptor situated within the voltage sensitive sodium ion channels and raise the threshold of the channel opening. ये channel opening के threshold को बढ़ा देते हैं. So impulse conduction is interrupted. तो impulse conduction जब आपके sodium ion channel block हो जाएंगे तो जो sodium का movement है वो properly नहीं हो पाएगा, जिससे कि impulse conduction नहीं होगा. So sodium ion channels over a critical length of the fiber. तो ये हमारे फाइबर की लेंथ पे भी डिपेंड करता है कि हमारे लोकल एनेस्थेटिक कैसा इफेक्ट शो करेंगे. सो द लोकल एनेस्थेटिक जो है हमारे चैनल में एक्टिवेटेड एज वेल एज इनएक्टिवेटेड दोनों ही फॉर्म में बाइंड करते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू द रेस्टिंग स्टेट. सो द रिसेप्टर हैज़ हाई एफिनिटी फॉर द लोकल एनेस्थेटिक ड्यूरिंग इनएक्टिवेटेड एंड एक्टिवेटेड स्टेज. जो आपका रिसेप्टर है उसकी एफिनिटी लोकल एनेस्थेटिक के लिए एक्टिवेटेड और इनएक्टिवेटेड स्टेट में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द रेस्टिंग स्टेज. So this is the mechanism of the local anesthetic. So this green thing is the sodium ion channel. ये हमारा एक sodium ion channel है. This is the activation gate or we can say M gate, and this is the inactivation gate, we can say the H gate. तो यहाँ पे हमारे पास activation gate और inactivation gate है. So इस टाइम पे हमारा चैनल जो है ये रेस्टिंग स्टेज में है. इन सेकेंड कंडीशन दिस इज द एक्टिवेटेड स्टेज ऑफ द चैनल. तो ये जो आप देख रहे हैं एम गेट दैट इज एक्टिवेशन गेट, ये ओपन हो गया है और सोडियम आयन जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर साइड से इंट्रासेलुलर साइड की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट कर चुके हैं. इन थर्ड स्टेज दैट इज इनएक्टिवेटेड स्टेज. इनएक्टिवेटेड स्टेज में आप देखिए जो आपके इनएक्टिवेटेड चैनल्स हैं ये क्लोज हो गए हैं, जिससे जो सोडियम आयन है ये एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट से इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट की तरफ मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं. सो दीज आर द 3 स्टेजेस ऑफ द सोडियम आयन. फर्स्ट वन इज द रेस्टिंग स्टेज, सेकेंड वन इज द एक्टिवेटेड स्टेज एंड थर्ड वन इज द inactivated stage. In activated stage, activated sodium ion channel will open. In inactivated stage, the inactivated sodium ion channel will close. Okay, so these gates are known as the activation gate and inactivation gate. So now let's discuss about the mechanism of action of the drug. So the sodium ion channel has an activation gate or M gate near its extracellular mouth. तो ये आपका M गेट होता है, ये कहाँ है आपका, दिस इज द एक्स्ट्रा सेलुलर एरिया, दिस इज द इंट्रासेलुलर एरिया और एक्सोप्लाज्म, एक्सॉन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे.
So the location of the activation gate is on extracellular site, okay, near its extracellular site, and an inactivation gate एट द इंट्रासेलुलर माउथ. इसका जो इनएक्टिवेशन गेट है वो कहाँ है आपके इंट्रासेलुलर माउथ में. इन द रेस्टिंग स्टेट द एक्टिवेशन गेट इज क्लोज. जब आपका जो चैनल है वो रेस्टिंग स्टेट में होता है, आपका एक्टिवेशन गेट जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोज है. So threshold depolarization of the membranes opens the activation gate, allowing the sodium ions to flow in along of the concentration gradient. तो जैसे ही हमारा ये जो चैनल है ये एक्टिवेटेड फॉर्म में आता है, ये एक्टिवेशन गेट जो है वो ओपन हो जाते हैं आपके, और सोडियम आयन जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट से इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि हमें एक डीपोलराइजेशन की शिफ्ट देखने को मिलती है. एंड विद इन अ फ्यू मिलीसेकेंड द इनएक्टिवेशन गेट क्लोजेज एंड आयन फ्लो सीजेज. कुछ टाइम के बाद जब सोडियम आयन का प्रॉपर मूवमेंट हो जाता है, सेल के अंदर का इन्वायरमेंट पॉजिटिव हो जाता है, देन जो आपके इनएक्टिवेशन गेट हैं ये क्लोज हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं इनएक्टिवेटेड स्टेज ऑफ द चैनल, और जो सोडियम आयन से उनका मूवमेंट बंद हो जाता है. ठीक है, सो यानी अगर आप चाहते हैं कि इम्पल्स कंडक्शन प्रॉपर हो, इनएक्टिवेशन गेट और एक्टिवेशन गेट दोनों ही इंपॉर्टेंट है. एक्टिवेशन गेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ सोडियम आयन फ्रॉम द एक्स्ट्रासेलुलर इन्वायरमेंट टू इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट, एंड इनएक्टिवेशन गेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द blockage of the sodium ion channel, and it will inhibit the flow or the movement of sodium ion from the extracellular to intracellular environment. So जब सोडियम आयन बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, तो अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ पे हमें डिपोलराइजेशन की शिफ्ट देखने को मिलेगी. फिर आपका इनएक्टिवेशन गेट यहाँ पे चैनल का बंद हो जाएगा, तो सोडियम आयन का मूवमेंट कम हो जाएगा और हमें रिपोलराइजेशन की शिफ्ट देखने को मिलेगी, जिसको हम बोलते हैं एक एक्शन पोटेंशियल. ओके, नाउ द ड्रग, the local anesthetic receptor is located within the channel in its intracellular half. अब जो हमारी ड्रग है इसका जो रिसेप्टर है ये आप देखेंगे इंट्रासेलुलर हाफ में, चैनल में अंदर की तरफ प्रेजेंट है. सो दिस इज द लोकल एनेस्थेटिक रिसेप्टर. ये एक्स्ट्रा सेलुलरली नहीं है, सेल के अंदर इंट्रासेलुलर हाफ में ये आपके चैनल के ऊपर प्रेजेंट होता है. दिस येलो थिंग इज द लोकल एनेस्थेटिक रिसेप्टर. सो द लोकल एनेस्थेटिक ड्रग ट्रांसफर द मेम्ब्रेन इन इट्स अनआयोनाइज्ड फॉर्म और लाइपोफिलिक फॉर्म, reionizes in the exoplasm, approaches to the local anesthetic receptor through the intracellular mouth of the channel. Okay, cationic form of the local anesthetic, which is primarily bind to the receptor, stabilizes the receptor in the inactivated stage and reduces the probability of channel opening and causes ब्लॉक ऑफ नर्व कंडक्शन. तो क्या होता है कि जो हमारी लोकल एनेस्थेटिक ड्रग होती हैं ये एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट में अपने लाइपोफिलिक फॉर्म में पेनिट्रेट करती हैं, यानी कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है ये इसको लाइपोफिलिक फॉर्म में पेनिट्रेट करके आपके एक्सोप्लाज्म में आ जाती हैं, यानी आपके नर्व फाइबर के अंदर आ जाती हैं. और एक्सोप्लाज्म में आने के बाद ये जो आपकी ड्रग की लाइपोफिलिक फॉर्म है ये रीआयोनाइज होती है, वापस से इसका आयोनाइजेशन होता है और ये कन्वर्ट हो जाती है BH पॉजिटिव, यानी कि इसके आयोनाइज फॉर्म में. इस ही आयोनाइज फॉर्म में हमारी जो ड्रग है वो इंट्रासेलुलर हाफ में प्रेजेंट सोडियम आयन चैनल पे बाइंड करती है और आपका जो इनएक्टिवेशन गेट है उसको क्लोज कर देती है, यानी कि चैनल को इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रखती है, जिसकी वजह से सोडियम आयन का एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रासेलुलर जो मूवमेंट होता है वो ब्लॉक हो जाता है और कोई भी नेक्स्ट एक्शन पोटेंशियल जनरेट यहाँ पे नहीं होता है. तो इस वजह से जो हमारी ड्रग्स होती हैं वो क्या करती है, नर्व कंडक्शन को ब्लॉक कर देती हैं. सो वी कैन से लोकल एनेस्थेटिक ब्लॉक्स द नर्व कंडक्शन बाय ब्लॉकिंग द सोडियम आयन चैनल विच इज प्रेजेंट ऑन द एक्सोप्लाज्म ऑफ दिस नर्व फाइबर, एंड बाय दिस these drugs will cause the blocking of nerve conduction. So this is all about the mechanism of action of local anesthetic drugs. Now we will discuss about the pharmacological action of the local anesthetic drug. So as you can see, we have classified the pharmacological action into two categories. In first category we have the local effect of the local anesthetic drugs, and in second there is a systemic action of the local anesthetic drug. So at first we will discuss about the local action of the local anesthetics drug. So local anesthetics has a no minimal irritant action, यानी कि locally ये drug जो होती हैं अप्लाई करने पे कोई भी irritant effect शो नहीं करती है. Now these drugs will block the sensory nerve endings, these drugs will block the sodium ion channel and will inhibit the communication between the brain and the periphery. So basically ये क्या करती है, nerve conduction को block कर देती हैं. So by these sensory nerve endings, nerve trunks and neuromuscular junctions, इन सारे साइड्स पे ये जो ड्रग्स हैं हमारी ये nerve impulse generation और कंडक्शन को ब्लॉक कर देती हैं. Ganglionic synapse and receptors, फॉर एग्जाम्पल दो स्ट्रक्चर जो कि बेसिकली हमारे सोडियम आयन चैनल की हेल्प से काम करते हैं, वहाँ पे भी ये ड्रग माइनर इफेक्ट शो करती हैं. Okay. Next, autonomic fibers are generally more susceptible than somatic fiber. Autonomic fibers are more susceptible for the local anesthetic drugs. So among the somatic afferent order of the blockade is pain, temperature sense, touch and
डीप प्रेशर सेंस, तो हमारी बॉडी की जितनी भी सेंसेस है, फॉर एग्जांपल पेन, टेम्परेचर, टच, ये सारे ही लोकल एनेस्थेटिक के यूज़ करने की वजह से अफेक्टेड होते हैं. So, the local anesthetic often fails to afford adequate pain control in inflamed tissue. अगर हम किसी inflamed area में जहाँ पे already inflammation है वहाँ पे local anesthetic को use करते हैं तो ये वहाँ पे pain perception को block नहीं कर पाती हैं. Why? Because इन्फ्लेम्ड एरिया जो होता है वहाँ का pH काफ़ी कम हो जाता है. सो लोअर pH में जो आपकी ड्रग होती है ये आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. एंड इफ़ द ड्रग इज़ इन आयोनाइज फॉर्म इट कैन नॉट क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल. और अगर ये आपकी सेल की मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगी तो ये एक्सोप्लाज्म में नहीं पहुँच पाएंगी. और अगर ये एक्सोप्लाज्म में नहीं पहुँच पाएंगी तो ये अपने लोकल एनेस्थेटिक रिसेप्टर के साथ में ब्लॉक नहीं होंगी. दूसरी चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पैथोफिजियोलॉजी में कि जो भी आपका इन्फ्लेम्ड साइड होता है वहाँ पे ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है ताकि वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को पहुँचाया जा सके. सो ब्लड फ्लो टू द इन्फ्लेम्ड एरिया इज़ इंक्रीज, द लोकल एनेस्थेटिक रिमूव्ड मोर रैपिडली फ्रॉम द साइट. यानी कि अगर आपने लोकली उस एरिया में लोकल एनेस्थेटिक को अप्लाई किया है तो वो साइट से बहुत जल्दी रिमूव हो जाएगा. इसीलिए वी कैन से द लोकल एनेस्थेटिक कैन नॉट प्रोड्यूस इट्स इफेक्ट ऑन द इन्फ्लेम्ड एरिया. ओके. Now the systemic action of the local anesthetic. So any local anesthetic injected or applied locally is ultimately absorbed and can produce some kind of systemic effect. Okay. So absorption के बाद ये drugs हमें systemic effect भी provide करती हैं. For example, in central nervous system, cocaine is a powerful CNS stimulant. The cocaine will show a powerful CNS stimulant action. So ये एक sequence of series show करती है. For example, at first euphoria, feeling of being happy. After that excitement. After that we have mental confusion, restlessness, tremor, twitching of the muscles and at the end death of the person. तो जैसे जैसे लोकल एनेस्थेटिक का डोज इंक्रीज हो जाएगा और ये हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को पेनिट्रेट कर पाएंगे, ये धीरे धीरे अपना स्टिमुलेटरी इफेक्ट शो करना शुरू करती है स्टार्टिंग फ्रॉम द यूफोरिक कंडीशन टू द डेथ ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन हु इज कंज्यूमिंग द लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स. नेक्स्ट द इफेक्ट ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक ऑन द कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम. सो हार्ट local anesthetic are the cardiac depressants drugs. So these drugs are basically decreases the heart rate and cardiac output, but no significant effect are observed at the conventional doses. That means कि whenever we are using the therapeutic dose of the local anesthetic, it will not show any effect on the heart. जब हम इसकी डोज को 2 to 3 times बढ़ाएंगे तो उस केस में ये कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम पे अपने कुछ माइनर इफेक्ट शो करती हैं. नेक्स्ट द इफेक्ट ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक ऑन ब्लड वेसल्स. तो लोकल एनेस्थेटिक टेंड टू प्रोड्यूस द फॉल इन ब्लड प्रेशर. जो लोकल एनेस्थेटिक होते हैं ये बीपी को फॉल कम करने में कर सकते हैं. दिस इज प्राइमरी ड्यू टू द सिंपैथेटिक ब्लॉकेट बट हाई कॉन्सेंट्रेशन एज ऑब्टेन्ड लोकली एट द साइट ऑफ इंजेक्शन डू कॉज डायरेक्ट रिलैक्सेशन ऑफ द एट्रियोलर स्मूथ मसल. दैट मीन्स कि जब हम लोकल एनेस्थेटिक की माइनर डोज लेते हैं तो ये आपके वेसोडाइलेशन कॉज करती हैं बाय डिक्रीजिंग द सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी, जो आपकी सिंपैथेटिक एक्टिविटी है उसको रिड्यूस करके. एंड whenever we are increasing the concentration of these drugs will directly decrease the arteriolar smooth muscle cell. ये उनको रिलैक्स कर देती हैं जिसकी वजह से हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाती है. नेक्स्ट, these are the adverse effect of the local anesthetic drugs. These drugs will cause CNS toxicity, cardiovascular toxicity, and whenever we injected a local anesthetic, maybe it is painful, but local tissue toxicity of local anesthetic is low. हम ऐसी ही ड्रग्स जो होती हैं उनको लोकल एनेस्थेटिक कैटेगरी में रखते हैं जो लोकल एरिया में अप्लाई करने पे कोई भी सीवियर टॉक्सिसिटी शो ना करें. Okay, next adverse effect of the local anesthetic is hypersensitivity reaction like rashes, angioedema, dermatitis and so on. Now the uses of the local anesthetic. So we can use the local anesthetic as surface anesthesia. आप किसी पर्टिकुलर एरिया पे इसको अप्लाई करके उस पर्टिकुलर एरिया में जो इम्पल्स कंडक्शन है उसको ब्लॉक कर सकते हैं ताकि जो आपका एरिया है लोकलाइज्ड एरिया उसका ब्रेन के साथ कम्युनिकेशन कट हो जाए. नेक्स्ट वी कैन यूज दिस ड्रग्स एज द इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया एंड for the use of conduction block. Okay, what is field block? So it is produced by injection of the local anesthetic subcutaneously. अगर हम किसी local anesthetic को किसी subcutaneous area में ही इंजेक्ट करते हैं तो उस केस में ये field block शो करता है. field block का मतलब
उस एरिया में जितने भी नर्व फाइबर्स हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया के साथ में आपके ब्रेन को कम्युनिकेट करवा रहे हैं, वो सारे के सारे नर्व फाइबर्स आपके ब्लॉक हो जाएंगे। यानी कि आप एक साथ बहुत सारे बॉडी एक्शंस को अफेक्ट करने वाले हैं, बहुत सारे बॉडी पार्ट्स को अफेक्ट करने वाले हैं। तो इस तरीके का जो लोकल एनेस्थेटिक का इफेक्ट होता है उसे हम बोलते हैं फील्ड ब्लॉक इफेक्ट ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक। नाउ द नर्व ब्लॉक, सो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय इंजेक्टिंग द लोकल एनेस्थेटिक अराउंड एनी पर्टिकुलर नर्व। अगर आप किसी पर्टिकुलर नर्व फाइबर के पास में लोकल एनेस्थेटिक को इंजेक्ट कर रहे हैं तो ये उस पर्टिकुलर नर्व फाइबर के थ्रू इनर्वेट होने वाले ऑर्गन पे ही अपना इफेक्ट शो करेंगी। द नेक्स्ट यूज ऑफ लोकल एनेस्थेटिक इज एज स्पाइनल एनेस्थीसिया। These are the references of this lecture. Thank you so much.